Hello everybody. Namaskar and pranam to all my friends. Again, I am coming to my channel Asit Sarikomania to discuss another new topic related to the Keynesian theory, and it is related to the theory of income, output, and employment. Today, I will discuss one of the most important aspect of average propensity to consume. It is average, most important concept, average propensity to consume. It is one of the technical aspect of propensity to consume. It is related to the Keynesian theory. So my friends, please see the video, watch the video up to the last, and comment me for any modification, or subscribe me also, and so that it motivate me to bring some new videos in future. So आज मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजप्शन फंक्शन, जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजप्शन फंक्शन सेम है. We know that consumption function, it is the functional relationship between income and consumption. Similarly, propensity to consume, here I have given definition. It refers to a schedule which shows the levels of consumption at different levels of income in an economy. एक अर्थव्यवस्था में एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम में जो करेस्पॉन्डिंग कंजप्शन होता है, उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं. हम एक शेड्यूल में उसको रिलेशन को देखते हैं इनकम एंड कंजप्शन के बीच में. सो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. जो इनकम और कंजप्शन के बीच में जो रिलेशन होता है, उसी को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टडी करता है. ओके. So propensity to consume has two technical aspects. One is the average propensity to consume, and second one is the marginal propensity to consume. So in next video I will discuss marginal propensity to consume. It is the slope of the consumption curve. It is very important one. But today I will discuss average propensity to consume, and in abbreviation form it is called APC. Abbreviation में इसको हम APC बोलते हैं. So, in case of average propensity to consume, definition is it is the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. ये रेशियो होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द पर्टिकुलर इनकम लेवल में हमारा कितना एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, उसी का रेशियो को हम लेंगे. इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. पर्टिकुलर इनकम लेवल में कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है. सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम का जो रेशियो है, उसको हम एपीसी बोलते हैं. और एपीसी बेसिकली क्या सोच करता है, इट मीन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ एंटायर इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन. पूरा एंटायर इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं. इट मीन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम used for expenditure on basically consumer goods. Clear? So you see a formula of APC is C by Y. For example, you see if income is rupees 100 crores and consumption is rupees 70 crores, then calculate APC. So we know that ये जो एग्जाम्पल है उसमें इनकम दिया है रुपीज़ 100 करोड़ एंड कंजप्शन 70 करोड़ दिया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे APC. So it is APC is consumption by income. It is equal to C by Y. So here APC is equal to 70%, 0.7 or 70%. It means 70% of the income used for consumption. 70% of income used for consumption expenditure. So APC 70%. APC 70% means it means 70% of the income used for consumption. So what APC shows? Suppose question is coming. What is APC? What APC shows? So APC shows actually परसेंटेज ऑफ इनकम यूज फॉर कंजप्शन. जो एंटायर इनकम का हम कितना परसेंटेज कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. तो ये जो एग्जाम्पल में इट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल 70% ऑफ इनकम यूज फॉर कंजप्शन मीन्स 30% ऑफ द इनकम यूज फॉर सेविंग.
बिकॉज इनकम स्प्लिट अप इनटू कंजप्शन एंड सेविंग। सो एपीसी क्या शो करता है जी, एंटायर इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन expenditure. Clear? Same thing I have written here. APC shows the percentage of income used for consumption. In some cases also, in whole economy also, APC calculates how much percentage of national income used for consumption expenditure during a given period of time in an economy. तो हमारा अर्थव्यवस्था में हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सपोज हम लेंगे, गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन सपोज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, हमारा ये जो अकाउंटिंग ईयर में हम टोटल नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन बाय द पीपल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट के हिसाब से हम ये भी ले सकते हैं, एपीसी इसको भी कैलकुलेट करता है कि हमारा जो टोटल नेशनल इनकम है जो अकाउंटिंग ईयर में, तो टोटल नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करते हैं लोग इन एन इकोनॉमी, हमारा अर्थव्यवस्था में, ये भी एपीसी कैलकुलेट करता है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे एपीसी शेड्यूल है, एपीसी शेड्यूल में हमको पता चलेगा कि एपीसी का वैल्यू क्या होता है, और जब इनकम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है तो एपीसी का कंडीशन क्या होता है, क्या एपीसी स्टेबल होता है ना, एपीसी बढ़ता है ना, एपीसी कम होता है। सो ये शेड्यूल में हमको पता चलेगा। जैसे व्हेन इनकम लेवल ऑफ द पीपल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, whether APC is stable one or whether APC increases or whether APC decreases. So just we want to collect information from APC schedule, average propensity to consume schedule. In the schedule, you see, you consider three columns. One is income, consumption, and third column is APC. Income and consumption, it means it is rupees in crores. So first one you see, we know that at zero level of income consumption is positive one. हम जानते हैं कि जब इनकम जीरो होता है तब कंजप्शन पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमको सर्वाइव करना है और हमको वी सस्टेन आवर लाइफ। फॉर दिस रीजन इट मीन्स वी वांट टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सर्वाइवल। ये इनकम जीरो होता है तब कंजप्शन पॉजिटिव होता है, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। क्लियर? तो सपोज इनकम जीरो होता है, कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर मेरा जो एजम्पशन में मैं लिया 40 करोड़, ये कहाँ से आया? पास सेविंग से आ सकता है और बोरोइंग हम कर सकते हैं। ओके, इनकम जीरो होने से भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमको सर्वाइव करना है, हमको हमारा लाइफ को सस्टेन करना है और हमको गुड्स एंड सर्विसेज जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर हमको खर्च करना है। ओके, so here in this table actually I have taken it means each and every time income increased by rupees 100 crores and consumption increased by 80 crores. So आपको confusion नहीं होना है, जो टेबल को रिमेंबर करना है, यहाँ पर जो इनकम बढ़ रहा है प्रत्येक स्टेज में 100 करोड़ बढ़ रहा है एंड कंजप्शन 80 करोड़ बढ़ रहा है। तो देखिए फर्स्ट इनकम जीरो, consumption 40, then in this case APC is infinite one, because you know that any number by zero is infinite. Okay, first one infinite one, then income increased to 100 crores and consumption increased from 40 crores to 120 crores. मैं वही बताया, जो income increased by 100 crores and consumption increased by 80 crores. Okay, सो यहाँ पर जो इनकम बढ़ रहा है वो 100 करोड़ बढ़ रहा है और कंजप्शन 80 करोड़ बढ़ रहा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। जो टेबल का ट्रिक है आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है? इनकम बढ़ेगा 100 करोड़ और कंजप्शन बढ़ेगा 80 करोड़ में जो अज्यूम किया, तो उसमें देखो 1.2 APC आ रहा है, क्योंकि कंजप्शन सो फ्रॉम दिस वी हैव डिटेक्टेड दैट द वैल्यू ऑफ APC इज ग्रेटर देन 1 when the value of APC is greater than 1. Now when consumption expenditure is more than income, जब consumption expenditure income से ज़्यादा होगा तब APC more than 1 होगा, APC का value more than 1 होगा। So we know that when consumption expenditure is more than income, then हमारा जो सेविंग आएगा वो नेगेटिव आएगा। भाई नेगेटिव सेविंग को हम डिस सेविंग बोलते हैं।
नहीं कि when consumption expenditure is more than income, then at that time saving is negative one, and this saving is called this saving. Clear? So in this case APC is 1.2. क्लियर? सो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि कब एपीसी का वैल्यू मोर देन 1 होता है, when the value of APC is more than 1. ओके, when consumption expenditure is more than income. और ये में सेविंग आप निकालो तो -20 करोड़ आ रहा है. देन देखो फिर अगेन इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़ एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 80 करोड़. देन व्हेन इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़, देन it becomes rupees 200 crores, and consumption also, when consumption expenditure is increased by rupees 80 crores, then again it becomes 200 crores. So in this case income is equal to consumption, both saman hua. It means entire income used for consumption expenditure, entire income converted to consumption expenditure. तो यहाँ पर जो देखो इनकम जब 200 करोड़ है तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है. इससे पता चलता है कि इनकम इक्वल टू कंजप्शन एंड सेविंग इज 0. सो इन दिस केस एपीसी वैल्यू इज 1. और हमको याद रखना है, प्रीवियस वीडियो में बोला था एक ब्रेक इवन पॉइंट, जब इनकम कंजप्शन के साथ समान होगा तो बेसिकली हम डायग्राम में जाएंगे. जब दोनों इनकम कंजप्शन के साथ समान होगा तब क्या होगा ना, इनकम कर्व इंटरसेक्ट द कंजप्शन कर्व. Okay, income curve intersect the consumption curve at a point, and this point is break even point, because at this point income is equal to consumption expenditure and saving is 0. Okay, so break even point में APC का वैल्यू 1 आएगा. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि show the break even point on the consumption curve and find the value of APC. आपको break even point consumption curve के ऊपर दिखाना है और वहाँ पर break even point में APC का वैल्यू निकालना है. हमको पता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इट इज़ द पॉइंट एट विच इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एंड सेविंग इज इक्वल टू 0. तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर इनकम कंजप्शन के साथ समान होता है एंड सेविंग 0 होता है. ओके, ये पॉइंट हमको कैसे मिलेगा? हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस पॉइंट? मैं बार बार बोला था कि हम डायग्राम में जब प्लॉट करेंगे, हम जानते हैं कि इनकम लाइन जो है 45 डिग्री लाइन, income line is initiate from origin and it makes 45 degree angle with x axis. x axis जो है वो income axis है. क्लियर? सो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होगा, जब इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन होगा और हम वहाँ पर प्लॉट करेंगे तो इनकम कर्व इट मीन्स इंटरसेक्ट कंजप्शन कर्व, और कंजप्शन कर्व इंटरसेक्ट इनकम कर्व एट ए पॉइंट. And at this point income is equal to consumption expenditure, and when income is equal to consumption expenditure, then saving is 0. So at this point APC is 1, because formula of APC is C by Y, and at break even point income is equal to consumption expenditure. Okay, so APC का वैल्यू 1 होगा कब ना, when income is equal to consumption expenditure. Then जब इनकम increased by 100 crore, it means increased to rupees 300 crore, and similarly consumption expenditure increased by rupees 80 crores and increased to 280 crores. in this case देखो यहाँ पर इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम एपीसी निकालेंगे 0.93. 0.93 मीन्स 93% ऑफ इनकम यूज फॉर कंजप्शन. यहाँ पर जो इनकम है 300 करोड़, कंजप्शन है 280 करोड़, एपीसी 0.93. एपीसी क्या शो करता है? व्हाट शोज बाय द एपीसी? एपीसी यही शो करता है कि एंटायर इनकम का कितना परसेंटेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूज होगा. तो यहाँ पर एपीसी 0.93 मीन्स 93% ऑफ इनकम यूज फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके, और जो 7% होगा, 93% ऑफ इनकम यूज फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो 7% क्या होगा? यूज फॉर सेविंग. Clear? Then next one, again income increased to rupees 400 crores and consumption expenditure increased to 360 crores. Again income increased by 100 crore and consumption expenditure increased by 80 crore. Then in this case you see APC is 0.90. It means 90% of the income used for consumption. Okay, यहाँ पर 90% of income used for consumption and another 10% of income used for saving, क्योंकि income दो पार्ट में स्प्लिट होता है.
Okay, it means some part of the income used for consumption and some part of the income used for saving. So यहाँ पर क्या है, 90% of income used for consumption and 10% used for saving. So इससे पता चलता है कि एपीसी का वैल्यू घट रहा है. When continuously income increases, then APC decreases. ओके, इसका कारण क्या है, क्यों जब इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तब एपीसी घट रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा है. फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली, व्हेन इट मीन्स वन मार्क क्वेश्चन इज कमिंग. व्हेन इनकम ऑफ द पीपल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, देन व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ एपीसी. सो एपीसी ऑल्सो व्हाट डिक्रीजेस. इसका अर्थ है जब इनकम लगातार बढ़ता जाएगा तब लोगों का जो डिजायर्स है, जो वांट्स है, वो पूरा होता जाएगा. क्योंकि इनकम जैसे बढ़ता जाएगा उनका इच्छा भी पूरा होता जाएगा. तो जब वो क्या करते हैं, जब इनकम बढ़ता जाएगा उनका ऑलरेडी जो नीड्स और डिजायर्स है, मैक्सिमम नीड्स और डिजायर्स है, वो पूरा हो चुका है. तो वो क्या करेंगे, वो इनकम का कम भाग खर्च करेंगे और ज़्यादा भाग वो बचत करेंगे. इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बींग टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर व्हेन कंटिन्यूसली इनकम इंक्रीजेस. जब इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ये ह्यूमन बींग का टेंडेंसी है, वो इनकम का कम पार्ट कंज्यूम करेगा और ज़्यादा पार्ट वो बचत करेगा. ये मेन कारण है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इट इज़ रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन फंक्शन ऑफ केन्स. It is also called it means fundamental psychological law of consumption function, and it is advocated by Keynes. तो यहाँ पर आप साइकोलॉजिकली देखो, जब इनकम हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, जो हमारा मैक्सिमम डिजायर्स है, नीड्स है, वो पूरा हो चुका है, और कहाँ पर हम खर्च करेंगे ज़्यादा. तो हम क्या करते हैं ना, कम खर्च करते हैं और ज़्यादातर हम बचत करते हैं. तो इसीलिए जब कंटिन्यूसली इनकम बढ़ता जाता है तब एपीसी कम होता है. जस्ट यू रिमेंबर, व्हेन कंटिन्यूसली इनकम इंक्रीजेस, then people it means fulfill their needs and desires. So already their maximum needs and desires already fulfilled. So then again when income continuously increases, then they want to spend less portion of the income for consumption and use more portion of the income for saving. So इसी के वजह से क्या होता है, जब इनकम कंटिन्यूसली बढ़ता है एपीसी घटता जाता है, एपीसी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस. तो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम को देखो, थोड़ा डायग्राम में हम देखेंगे हम एपीसी कैसे निकालेंगे. तो आप कंजप्शन कर्व को ड्रॉ करो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले जाओ कंजप्शन कर्व के ऊपर. तो पर्टिकुलर पॉइंट में मेजर करो, वो पर्टिकुलर पॉइंट में कितना इनकम है और कितना कंजप्शन है, और उसका रेशियो ले जाओ मेजर करने के लिए. सो ईच एंड एवरी टाइम इट मीन्स एट ए पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व वी कैन मेजर एपीसी. एक पॉइंट, एक कंजप्शन कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे, उसी पॉइंट में हम एपीसी को मेजर करेंगे. यहाँ पर देखो, कंजप्शन कर्व विद सीसी. हियर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इनकम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कंजप्शन. मैं बार बार बोला था, जो कंजप्शन फंक्शन में कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड अपॉन इनकम. जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हमारा जो डायग्राम्स होता है इकोनॉमिक्स में, जो दो वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं. तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना कि सर क्यों इनकम को एक्स एक्सिस में लिया गया और कंजप्शन एक्सपेंडिचर को वाई एक्सिस में लिया गया. वो नहीं, एक्चुअली मेरा फ्रेंड्स इसको याद रखना है कि सभी समय डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस में लेते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर कंजप्शन कर्व सीसी है. तो कंजप्शन में बताया आपको कि एक पॉइंट के ऊपर हम, जो कंजप्शन कर्व के ऊपर एक पॉइंट में हम मेजर करेंगे, तो एट एनी पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व वी कैन मेजर एपीसी. कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो कंजप्शन कर्व के ऊपर और एपीसी को मेजर कर सकते हो. तो यहाँ पर इट मीन्स आई हैव टेकन पॉइंट ए ऑन द कंजप्शन कर्व सीसी. सो एट दिस पॉइंट इनकम इज OY1 and consumption is ON. Okay, income level is OY1 and the corresponding consumption expenditure is ON. So APC is equal to, it is consumption expenditure by income and it is equal to ON by OY1. तो इसमें हमको याद रखना है, कोई भी पॉइंट्स में हम मेजर कर सकते हैं कंजप्शन कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट में, मगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे और उसी में एपीसी को हम मेजर करेंगे. यहाँ पर जो पर्टिकुलर पॉइंट में ए लिया, जो कैपिटल ए है देखो, और उसी पॉइंट में मैं डिटेक्ट किया इनकम OY1 है. सो इसी इनकम में हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होता है, ON होता है.
तो यहाँ पर एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, इट इज इक्वल टू ओ एन बाई ओ वाई वन. ओके, सपोज क्वेश्चन इज कमिंग एक्सप्लेन द एपीसी विद शेड्यूल एंड डायग्राम. तो आपको शेड्यूल करना है, वो जो टेबल में बताया, जैसे कंटिन्यूसली इनकम बढ़ रहा है तो एपीसी क्या होता है, घट रहा है. तो वहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, और डायग्राम में आपको कंजप्शन कर्व ड्रॉ करना है और उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है, और पॉइंट में आपको इनकम को डिटेक्ट करना है, और उसी इनकम में करेस्पॉन्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिटेक्ट करना है, और एपीसी को निकालना है. तो यहाँ पर जो टेबल का ट्रिक मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जो टेबल में लिया, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन को मैं 40 करोड़ लिया. ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. देन में क्या किया मैंने, ईच एंड एवरी टाइम इनकम इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 100 करोड़. इनकम बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 100 करोड़ बढ़ रहा है, एंड करेस्पॉन्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय रुपीज 80 करोड़. तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर इनकम बढ़ रहा है रुपीज 100 करोड़ और कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है रुपीज 80 करोड़. ये जो मैं अजम्पशन लेकर मैं जो टेबल किया, तो टेबल कंफ्यूजन नहीं होना है. फर्स्ट ऑफ ओनली आपको ऑटोनोमस कंजप्शन को रिमेंबर करना है, और यहाँ पर मैं ऑटोनोमस कंजप्शन को 40 करोड़ लिया जीरो लेवल ऑफ इनकम में. देन इनकम को मैं 100 रुपीज़ बढ़ाया और कंजप्शन एक्सपेंडिचर को 80 रुपीज़ बढ़ाकर मैं दिखाया एपीसी का वैल्यू क्या है, कब एपीसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, कब 1 होगा और लेस देन 1 होगा. मगर एपीसी का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा. एपीसी का वैल्यू कब जीरो होगा, वी नो दैट फॉर्मूला इज सी बाई वाई. तो वी नो दैट व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो देन ऑटोमेटिकली एपीसी वैल्यू जीरो होगा. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर नेवर भी जीरो, कभी भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर जीरो नहीं है, क्योंकि वी नो दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिव वन. हमको पता है कि जब इनकम जीरो होगा तभी भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर पॉजिटिव होगा. तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो नहीं है, तो एपीसी कैसे जीरो होगा. तो वैल्यू ऑफ एपीसी मे बी मोर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, बट नेवर बी जीरो. आपको याद रखना है, एपीसी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, कब होगा ना, व्हेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम. एपीसी का वैल्यू 1 हो सकता है, कब होगा ना, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जब इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर समान होगा. एपीसी का वैल्यू लेस देन 1 है, कब होगा ना, व्हेन इनकम इज मोर देन कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग इज पॉजिटिव 1. क्लियर, जब हमारा जो इनकम है कंजप्शन एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तब एपीसी का वैल्यू लेस देन 1 होगा. और जो एपीसी का जो वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जीरो नहीं है. मीन्स वी नो दैट ऑटोनोमस कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज पॉजिटिव 1. क्लियर. और एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, देन एपीसी फॉल्स. ओके, एपीसी कम होता जाता है, क्योंकि इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर व्हेन इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीजेस. ये हमारा टेंडेंसी ह्यूमन बीइंग का है. जब इनकम बढ़ता जाएगा तब इनकम का कम भाग खर्च किया जाएगा और ज़्यादा भाग बचत किया जाएगा. तो उसी में डायग्राम तो एक्सप्लेन किया, यहाँ पर डायग्राम वही उसी को मैं बोल चुका हूँ. डायग्राम है डिटेक्टेड, एक पॉइंट में मेजर किया, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ. एपीसी मेजर्स एट एनी पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व. तो एपीसी को जो हम मेजर करेंगे, कोई भी पॉइंट कंजप्शन कर्व के ऊपर हम मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज में बताया, यहाँ पर एपीसी इज इक्वल टू 1 है, जो ब्रेक इवन पॉइंट, 8 ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी का वैल्यू 1 होगा. क्योंकि यहाँ पर देखो एक डायग्राम में बताया, ये डायग्राम को देख लो, जो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, पॉइंट ई. जब इनकम 200 करोड़ है तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है. देखो, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इनकम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर. इसी से आप डिटेक्ट कर लो ब्रेक इवन पॉइंट को. ब्रेक इवन पॉइंट इज ई वेयर कंजप्शन कर्व सीसी इंटरसेक्ट इनकम कर्व ओ वाई. इनकम कर्व इज ओ वाई, इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस. ठीक है. और यहाँ पर आप देखो, जो पॉइंट ई मैं जैसे टेबल में लिया था, जब इनकम रुपीज़ 200 करोड़ था तब कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी 200 करोड़ था. तो तब जो प्लॉट करने में पॉइंट ई है ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर सी इज इक्वल टू वाई और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम एंड वैल्यू ऑफ एपीसी इज 1. सपोज कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सो द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व. कंजप्शन कर्व के ऊपर आप ब्रेक इवन पॉइंट को दिखाओ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एपीसी. तो यही है. ब्रेक इवन पॉइंट के पहले देखो, ब्रेक इवन पॉइंट के जो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, प्रेसिडिंग ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम. Consumption expenditure is greater than income. You see the arrow mark, it is dish saving. Okay, some dotted part you see.
देन इनकम। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज़्यादा होगा तब हमारा डिसेविंग होगा, सेविंग नेगेटिव होगा। ओके, वही नेगेटिव सेविंग को वो डॉटेड मार्क में दिया गया डिसेविंग। ओके, लिखा गया है डिसेविंग। तो उसी में क्या होगा ना, एपीसी का वैल्यू मोर देन 1 होगा। एपीसी का वैल्यू मोर देन 1 होगा। कब होगा ना, जब डिसेविंग होगा, जब व्हेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम एंड सेविंग इज -1। ओके, देन एपीसी का वैल्यू 1 होगा। एपीसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। सो इसको मैं डायग्राम में वही देखिए। तो आप राइट साइड चलो ब्रेक इवन पॉइंट का। तो राइट साइड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट यू सी इट मीन्स income is more than consumption. How do you know that income is more than consumption? Now income after break even point income line is above consumption line. Income line is above consumption line and it shows that income is more than consumption expenditure. So when income is more than consumption expenditure, then saving is +1, and in this case value of APC what is less than 1. ओके, उसी को देखाकर मैं यहाँ पर वही डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ को। थोड़ा प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से देख लो, प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ एपीसी। फर्स्ट वन, एपीसी इज इक्वल टू 1 मैं बताया, एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू वाई, वही डायग्राम में मैं दिखाया। एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी कब ग्रेटर देन 1 होगा ना, व्हेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। जब हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा तब हमारा डिसेविंग आएगा, सेविंग नेगेटिव होगा। तो बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा एपीसी ग्रेटर देन 1, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। तो वहाँ पर डायग्राम में ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट ई है। तो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट यू सी कंजप्शन कर्व इज अबव द इनकम कर्व, इट मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम लेवल। सो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? नेक्स्ट वन यू सी, सेकेंड वन कंप्लीट। थर्ड वन, एपीसी लेस देन 1। मैं अभी बताया एपीसी कब लेस देन 1 होगा ना, जब इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम से कम होगा और सेविंग पॉजिटिव होगा। तो व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम, दैट इज टू से बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का बियॉन्ड में थोड़ा देख लो, ब्रेक इवन पॉइंट का बियॉन्ड में इनकम लाइन अबव द कंजप्शन लाइन। Okay, income curve is above the consumption curve beyond the break-even point E. You see, so saving is +1. So in this case, APC is less than 1. Clear? क्योंकि हम टेबल में देख चुके हैं, टेबल में हमको पता है कि जब इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा, सेविंग पॉजिटिव होगा, तब एपीसी का वैल्यू लेस देन 1 होगा। ओके, देन इसको मैं बता चुका हूँ, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इनकम कंटिन्यूसली बढ़ता है तब एपीसी कम होता है, उसका कारण मैं बता चुका हूँ। व्हेन इनकम ऑफ द पीपल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स बिकॉज इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर। क्योंकि ये लोगों का टेंडेंसी है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जब हमारा कंटिन्यूसली इनकम बढ़ता जाएगा, लोग क्या करेंगे, उनका इच्छा और जो वांट है, उनका डिजायर है, उसको वो पूरा करते जाएंगे। तो उनका जब मैक्सिमम डिजायर फुलफिल हो जाएगा और तब इनकम बढ़ेगा, वो क्या करेंगे और कहाँ पर भी खर्च करेंगे, वो इनकम का ज़्यादा भाग क्या करेंगे, बचत करेंगे, और इनकम का कम भाग खर्च करेंगे। वही मैं लिखा, एपीसी फॉल्स बिकॉज व्हेन इनकम ऑफ द पीपल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ओके, एपीसी फॉल्स बिकॉज इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू कंज्यूम लेस एंड सेव मोर व्हेन इनकम इंक्रीजेस एज ऑलरेडी दे फुलफिल देयर मैक्सिमम नीड्स एंड डिजायर्स। क्योंकि इनकम बढ़ने से क्या है, लोगों का जो मैक्सिमम डिजायर्स और नीड्स है वो पूरा हो चुका है, और वो क्या करेंगे ना, कम भाग इनकम का कम पोर्शन खर्च करेंगे और ज़्यादा पोर्शन वो बचत करेंगे। और नेक्स्ट वन, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। मैं बार बार बताया, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला है C/Y। सो न्यूमरेटर जीरो होगा तो जीरो होगा। तो न्यूमरेटर क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज नेवर बी जीरो बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज +1, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो सेम रीजन यहाँ पर देना है, दिस इज बिकॉज कंजप्शन इज नेवर जीरो, even at zero level of income autonomous consumption is there, so always consumption expenditure is +1. So for this reason APC value of APC can never be zero. यहाँ पर कुछ रीजन्स आ सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट वही डायग्राम और कुछ क्वेश्चंस में दे दिया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एपीसी, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको देना है, वहाँ पर ऊपर में मैं एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ।
और आप एग्जाम्पल को शेड्यूल को भी ले सकते हो। एक्सप्लेन एपीसी विद शेड्यूल एंड डायग्राम डायरेक्ट कौन, इसको मैं बता चुका हूँ। डायग्राम में आप ब्रेक इवन पॉइंट को दिखाओ और वहाँ पर एपीसी का वैल्यू को दिखाओ बाय यूजिंग डायग्राम, सो दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1। आपको ये भी क्वेश्चन इसको थोड़ा ट्विस्ट करेगा कि शो द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपीसी। ब्रेक इट मीन्स कंजप्शन कर्व के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट को दिखाओ एंड वहाँ पर एपीसी का वैल्यू को निकालो। सो द ब्रेक इवन पॉइंट on consumption curve and at this point calculate value of APC, explain the properties of APC। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो सेकेंड टेक्निकल एस्पेक्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज़ द स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कमेंट इट, लाइक इट। कमेंट थोड़ा तो लाइक कर दो यार, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कुछ कमेंट में लिखो, और कुछ सुधार चाहिए, एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट, देन अगेन आई मीन्स आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट एंड आई रिवैम्प इट। सो यू नो दैट ये तो है लाइक करना, और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, यही तो मोटिवेशन है हमको, आगे में ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो लाएंगे। तो आज ही इतना फ्रेंड्स, फिर अगेन नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा सब्सक्राइब बटन जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये केनेसियन थ्योरी का लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।